बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये that's like a feather in the cap of PCDA that we have initiated this Sehri academic program since 2018, and this is our seventh or eighth consecutive program. Every year we arrange this Sehri program, and this year this program is replicated at around 10 different places in Pakistan. So now this campaign is a nationwide campaign. Assalamu alaikum sir. वासमा कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम सर। सर कैसे हैं? कैसे हो यार? खैरियत? Assalamu alaikum. So, sorry for disturbance. No, sir, it's not. It's pleasure for us, like you are over here at this time of the day. Thanks, sir. Okay, so without wasting any further any time, as we are like short of time due to the Sahri timings, we will start our program with Tilawat Quran Pak. For this, I'll like to invite Danish. Danish is here. I would like to invite Danish for a few verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazakallah khairan kaseera. Now I would like to announce our renowned honorable panelists first, and we are honored to have such great legendary teachers with us at this time of Sehri. So first of all, I would like to introduce our first panelist. Basically, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम में से अक्सरियत इनको एस अपने उस्ताद के तौर पर जानती है, और बहुत सारी हमारी कामयाबियों के पीछे इनका हाथ है. सो ही इज़ प्रोफेसर एंड डायरेक्टर ऑफ सर सैयद मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर जमान शेख. थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग ओवर हियर. ही इज आवर फर्स्ट पैनलिस्ट. Our second panelist is a very dearest friend, and thank you very much for always be with us, sir. He is professor of cardiology, and he is ex director of cardiology from KIHD, and he is none other than Professor Dr. Abdul Rashid. One of our panelists in this is on the way, but due to shortage of time, we have just started, and I'll introduce him once he'll arrive. So, without wasting any further time, I'd like to introduce our first speaker. He is consultant endocrinologist and diabetologist at Liaquat National Hospital, and he's president-elect of Pakistan Endocrine Society, none other than Dr. Ali Asghar. The stage is yours now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Thank you, Dr. Asma, and thank you very much, PCDA and Sir, for inviting me in this talk. मेरी ये पहली सेरी का कोई प्रोग्राम है, बल्कि रमज़ान का पहला प्रोग्राम है मेरे करियर में, और मैं हैरान हूँ कि पूरा फुल हाउस है. रियासत साहब, आपको क्रेडिट जाता है. Give him a big clap, please. तो मैं निकला तो शायद थोड़े लोग होंगे, मैंने कहा घर से निकला तो शूटिंग, but this is a full house, which amazes me, right? So fantastic efforts. मेरी आदत है चलने फिरने की, लेकिन माइक आया नहीं है अभी, हैंड माइक, तो मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे खड़ा रहूँ. महमूद साहब, माइक अगर आ जाए तो अच्छा है. So nebivolol in the treatment of hypertension and diabetic hypertension. So diabetes की talks तो हम देते रहते हैं, मेरे बाद भी बड़ी ज़बरदस्त talk होगी ट्रिपल कॉम्बिनेशन पे, but nebivolol in the treatment of hypertension is unique. So burden of hypertension. पाकिस्तान is a unique country. हमारे यहाँ obesity भी बहुत ज़्यादा है, diabetes भी बहुत ज़्यादा है, hypertension भी बहुत ज़्यादा है. Now look at the burden of hypertension in the world. 1 in 5 people in the world currently have hypertension if we talk about adults. Now this is 20% of the world's adult population has hypertension, right?
If you look at Pakistan, over 70% of the diabetics, they suffer from hypertension. Worldwide also, if we see with the world data, around 70 to 80% of the diabetics will have hypertension. Now, why are we worried? एक एंड पे हमें डायबिटीज को ट्रीट करना है, फिर हाइपरटेंशन है, फिर डिस्लिपिडीमिया है, ओबेसिटी है, and all these lead to complications. That's why we are worried, right? What about the global burden? Now, 1.28 billion adults from age 30 to 79 years have hypertension. 2/3 live in middle and lower income countries. मुझे नहीं पता मिडिल में आते हैं कि लोअर में आते हैं, अपर में तो हम बिल्कुल भी नहीं आते हैं. So it's the middle and lower income countries where the bulk of diabetes, the bulk of hypertension is the most, just like diabetes. 46% of adults with hypertension, they are unaware that they have this condition. So again, 1 out of 2, just like diabetes, 1 out of 2 hypertensives, they do not know that they have hypertension, right? 42% with hypertension are diagnosed and treated, and only 20% adults with hypertension have it under control. 80% of these are uncontrolled. एक एंड पे हम दवाओं की बातें करते हैं और दूसरे एंड पे हम 80% hypertension is uncontrolled. 1 out of 2 do not know that they have hypertension. These are very, very significant and worrying numbers. Hypertension is responsible for 13% of the deaths overall and 40% of the deaths in people with diabetes. So, with this preamble, let's move forward. So, complications of hypertension, आप देखते हैं डायबिटीज की इसी तरह की पिक्चर आती है, from head to toe you have complications. So, either we treat hypertension and diabetes better and prevent our patients from going into complications, or we await these complications from head to toe: stroke, heart attacks, heart failure, kidney disease, sexual dysfunction, vision loss, and the list is never ending, right? So, again, hypertension and coronary artery disease, a 10 millimeter reduction in systolic blood pressure, how much percentage points the cardiovascular disease decreases by just reducing 10 millimeters of mercury, the systolic blood pressure? Can anybody tell this, please? इसके लिए इनाम है, और इनाम मैं नहीं दूंगा, या सर या पीसीडीए देगी, तो आप दुआ करेंगे कोई सही जवाब ना दे, ठीक है? So 17% reduction in the coronary artery disease by just 10 millimeters of mercury reduction in the systolic blood pressure, right? So again, let's see the guidelines. क्या कट ऑफ होना चाहिए? What should be the target blood pressure control in diabetics? कोई बता सकता है? I think 130/80. Okay, anybody else? Less than 130/80? कोई और कोई डिफरेंट बात करना चाहेगा? ठीक है, इतने कट ऑफ आप बताएंगे कि अगर हम शहरी तक कट ऑफ पे डिस्कशन करते रहें तो 80% जो अनकंट्रोल्ड है वो बैठे रहेंगे कि डॉक्टर्स पहले कट ऑफ डिसाइड करें एंड देन वी गेट ट्रीटेड. सो द होल पॉइंट इज कि कट ऑफ हम 140/90 रखें या 130/80 रखें या 120/80 रखें. आपको बताऊंगा गाइडलाइंस एंड सी द डिफरेंस इन द गाइडलाइंस. गाइडलाइंस में डिफरेंस देखिएगा. So this is American Heart Association, and if you see the American Heart Association, less than 120/80 is considered normal. More than 120 to 129 systolic is considered elevated. And then stage 1 hypertension is systolic between 130 and 140 and diastolic between 80 and 90. And anything more than 140/90 is considered to be stage 2 hypertension. So American Heart Association and American Diabetes Association से आप पूछेंगे तो आपको बताएगी 130/80 should be the cutoff, right? Look at the American Diabetes Association guidelines again. So they say yes, 130/80 you start medications. Remember, the treatment of anything, hypertension, diabetes, dyslipidemia, is always lifestyle modification first. तो हम अपनी बिजी क्लिनिक्स में अक्सर जो है वो दवाओं के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि कौन सी दवा 1 पे देनी है, कौन सी 2 पे, कौन सी 3 पे. But the real thing is that we need to understand that lifestyle modification has to be on the core, right? So again, if blood pressure is more than 130/80, we start one agent. But if the blood pressure is more than 160/100, we start dual therapy right at the start. Now, if we have to select one agent, if there is albuminuria and coronary artery disease, it has to be that one agent has to be ACE inhibitors or ARBs. And if the patient does not have albuminuria or coronary artery disease or any evidence of coronary artery disease, then that one medication can be an ACE inhibitor or an ARB or a calcium channel blocker or a diuretic, right? And then whatever you have started, the first 3 medications in hypertension with diabetes remain to be ACE inhibitor, ARB, calcium channel blocker and a diuretic.
फिर आपने पहले कुछ भी दिया, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ऑल्टरनेट करेंगे. And you must be amazed, where are the beta blockers, right? Mahmood bhi dekh rahe, where are our beta blockers? We're coming on to beta blockers. Just hold on, right? So again, hypertension, the GLC-8 guidelines, again, it says the blood pressure goal in diabetes and CKD should be less than 140/90. Remember, the AHA and the ADA would say keep it less than 130/80. They say keep it less than 140/90, right? And if somebody is more than 60 years of age without diabetes and CKD, keep it up to 150/90 as well. That can be considered normal. The medications, according to all these guidelines, the first three medications are ARBS inhibitors, calcium channel blockers, and diuretics, right? Now, this is the nice algorithm and pretty much tells the same things, right? So, what about the beta blockers? What is the role of beta blockers in hypertension and specifically in diabetes, right? So again, what does the beta blocker do? The beta adrenergic antagonists, right? So decreased chronotropy, which is heart rate, decreased inotropy, lucitropy, which is the relaxation rate, and therefore the cardiac output, decreased renin release, decreased venous return in plasma volume, decreased peripheral vascular resistance, vasomotor tone, increasing the vascular compliance, decreasing the norepinephrine release, decreased CNS activity, baroreceptor resetting, and anti-anxiety effect. Now, when we talk about hypertension in diabetes, we need to understand that beta blockers have a unique role where they need to be pitched in. हो सकता है कि आपके पास फास्ट बॉलर्स ज्यादा हों आपके टीम के अंदर, आपके मुल्क के अंदर, लेकिन आप एक स्पिनिंग ट्रैक पे खेल रहे हैं, तो आपको जबरदस्ती अपने दो तीन स्पिनर्स लेकर जाने होंगे, भले वो सेकंड थर्ड टायर के स्पिनर्स हो. You need to see the pitch before you pitch on the team, right? So again, when we talk about beta blockers ऐसे भी है जो alpha antagonism करते हैं, cause vasodilation and decrease peripheral vascular resistance. फिर beta blockers में तीन चीजें हैं, the beta 1 antagonism, the beta 2 antagonism, and the beta 3 agonism. Beta 1 receptors कहाँ पे होते हैं, कोई बता सकता है? Beta 1, where are the beta 1 receptors? The heart and the kidneys, right? When we give beta blockers, we reduce the heart rate, we reduce the contractility, reduce the relaxation rate, and because they are on the kidneys as well, we reduce the renin, reduce the whole RAS system, we block the RAS system, and then cause vasodilation. And then the beta 2 receptors. Where are the beta 2 receptors? कौन बताएगा? Lungs, fantastic. And very good. Vascular smooth muscle as well, right? So beta 2 antagonism, again, some action will be there on the beta 1 as well. Some beta 2 are also there in heart as well. So again, vasoconstriction by acting on the vascular smooth muscle, bronchoconstriction, decreased insulin and glucagon secretion, and decreased glycogenolysis by the beta 2 antagonism. And then beta 3 agonism. Beta 3 receptors कहाँ पे होते हैं? ये कौन बताएगा? This is something that is unique, not very common that we talk about beta 3 agonism, right? Isan? Very good. Bladder, urinary bladder, the lipids, and again the vascular endothelium, right? And this is the beta 3 agonism that causes the nitric oxide release by nitric oxide synthase activation, right? And the nitric oxide starts to be produced in the vascular endothelium. And again, increased lipolysis and antioxidation by acting on the vascular endothelium. So when we talk about nebivolol, it is a beta 1 antagonist and a beta 3 agonist. It does not act on the beta 2 receptors, from where most of the side effects of beta blockers come. Which receptor? Beta 1, beta 2 or beta 3? बीटा टू. फैंटास्टिक. किसने जवाब दिया है यहाँ पे? फैंटास्टिक डॉक्टर आसमा. एक क्लैप होनी चाहिए इनके लिए, ठीक है? इस टाइम पे, सैरी के टाइम पे आपको बताना इट्स वेरी डिफिकल्ट. So again, beta 1 antagonism and beta 3 agonism. Now look at the three generations of beta blocker. This is the first generation. First generation non-selective थी. Beta 1 antagonism भी है, beta 2 भी है. Remember the side effects, that most side effects come in the increase in glucose and other side effects like bronchoconstriction, they would come to the beta 2 antagonism, right? So ये non-selective beta blockers थे. But generation 2, atenolol, metoprolol, bisoprolol, more beta 1 antagonists, right? More selective. Then came the third generation, carvedilol and labetalol, which were beta 1 and beta 2 antagonists, but they were also alpha antagonists as well. And then comes nebivolol, which is the third generation,
but it only acts on the beta 1 and uniquely is also a beta 3 agonist, right? And this is where the beneficial effects of nebivolol will come into, जिस पर हम अभी बात करेंगे आगे चल के. So again, the non-selective beta blockers like propranolol, both beta 1, beta 2 were the first coming up in 1960s. फिर 70s में selective beta 1 antagonists etenolol or metoprolol आए. फिर 1980s and 90s में we got the non-selective but also the alpha antagonist vasodilating beta blockers like carvedilol and labetalol. And then in 2007, it was the selective beta 1 antagonist with beta 3 agonism, vasodilating effect, the nebivolol, which was approved in 2007, some 18 years from today, right? And I'm amazed. आप लोगों में से कितने लोगों ने नेबिविलोल कभी पढ़ा है खोलकर, सिर्फ नेबिविलोल के बारे में? सो 1.5 साल पहले जब मैंने नेबिविलोल पहली बार खोल के पूरा पढ़े और 15 आर्टिकल्स नेबिविलोल के बारे में पढ़े, तो आई वाज अमेज्ड that this molecule has got many effects which we don't know and which we don't really usually think when we practice beta blockers specifically. So now look at the beta 1 to beta 2 selectivity scores. Now you look at nebivolol, it's the most beta 1 selective medication when you compare it even with the third generation medications. So what were the issues with the earlier generation beta blockers, right? First of all, the peripheral arterial disease because of the vasoconstriction. Then comes the sexual dysfunction. Now, let me ask here only, how many diabetics have erectile dysfunction? And if nobody can answer, Professor Zaman is an expert in erectile dysfunction. He probably would answer, right? If you have ever heard his talk on erectile dysfunction, you'll appreciate this gentleman. He has got a wonderful talk on erectile dysfunction. Give him a clap, please. So I'm happy to be down and moving. एक जगह खड़े रहना मेरी आदत ही नहीं है, ठीक है? तो आवाज अब आप लोगों को आ रही है. Sexual dysfunction is the biggest side effect that comes with beta blocker, and it's always a worry with diabetes because in diabetes, 65% of male diabetics will have sexual dysfunction or erectile dysfunction, right? Again, disturb glucose profile. So beta blockers क्या glucose levels को बढ़ाते हैं? Yes or no? Yes. माइक नहीं चल रहा है please. Okay, so is it working really? लेकिन मैं 5-7 मिनट बाद ऐसा ना हो कि गला डाउन हो जाए. दिस इज सेरी टाइम डॉक्टर आसमा. Okay, so disturbed glucose profile, thank you. Disturbed glucose profile, so glucose levels they go up with beta blockers, right? Mainly because of the insulin secretion that goes down, right? Disturbed lipid profile, so earlier generation beta blockers used to increase triglyceride and decrease the HDL cholesterol, which was not good metabolically, right? Decrease exercise tolerance because you have the heart rate limitation here with beta blockers. And then asthma exacerbation, COPD, that can be exacerbated by the earlier generation beta blockers, particularly because of the beta 2 antagonism that is there in the earlier generation beta blockers. So nebivolol in hypertension. Now nebivolol has got two isomers, right? L nebivolol and D nebivolol. And remember it acts on two of these alpha and betas. Which ones? Beta? कौन से पे act करता है nebivolol? Beta 1 and beta 3. Beta 1 antagonist and beta 3 agonist. Now the D-nebivolol, it acts on the beta 1 receptors of the heart और यहीं पे heart rate को कम करेगा, contractility को बेहतर करेगा and the output and it reduces the heart rate. और जो L-nebivolol है, this acts on the vascular endothelium and here it is where it increases the nitric oxide which reduces the endothelial dysfunction and improves the vasodilation at the level of the peripheral vessels, and both of these effects together reduces the blood pressure, right? So again, if we talk about beta blockers, why in diabetes, right? Why beta blockers in diabetes? So uncontrolled hypertension with diabetes is a real problem. Now diabetes, we know what is the biggest side effect or the biggest risk factor that we have with diabetes. It's the cardiovascular disease, right? So with cardio, we are worried about the cardiovascular disease, and the biggest thing that leads to cardiovascular disease is endothelial dysfunction, insulin resistance. Erectile dysfunction is what we worry about in all our diabetics. Cardiovascular disease, of course.
And then more than 70% of the diabetics, remember, 70% diabetics have hypertension, and 70% of diabetics with hypertension will need more than one medication to control their blood pressure. Again, like diabetes, hypertension also increases the oxidative stress. And in the oxidative stress, what happens is that there is endothelial dysfunction. The nitric oxide synthase activity gets low, the nitric oxide production gets low, and there is vascular constriction, which will lead to atherogenesis and cardiovascular disease. So, just like diabetes, hypertension also increases the oxidative stress. And here the story starts to change because this endothelial stress, this leads to endothelial dysfunction, decreased nitric oxide synthesis, as a result increased cardiovascular disease. My apologies कि ये इतना अच्छा स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन I hope I can explain this with my own self, right? So nebivolol, by acting on the beta 1 agonist, beta 1 receptors, antagonizes that, acts on the heart, reduces blood pressure. On the other hand, the beta 3 agonism increases the nitric oxide in the peripheral smooth muscles and reduces the oxidative stress, and again increase the cardiovascular disease outcomes together with reducing the blood pressure. So again, nebivolol and erectile dysfunction. Now, as I said, see, diabetes leads to erectile dysfunction by a lot of mechanisms, right? Now, diabetes is not alone diabetes. It's obesity, it's hypertension, it's dyslipidemia. Again, all these things, hypertension, dyslipidemia, obesity, all these things will individually lead to erectile dysfunction. Then diabetes through microvascular and macrovascular disease again leads to erectile dysfunction. And if we talk about erectile dysfunction, global prevalence, this is the global prevalence of erectile dysfunction in diabetes, 65%. This means that every 2 out of 3 diabetics, they have erectile dysfunction. Now, we don't want to control our patient's blood pressure at the cost of his family life, right? At the cost of his the erectile dysfunction. So we have to keep in mind that conventional beta blockers, they decrease the blood flow in the corpora cavernosa due to vasoconstriction. But not this is not the case with nebivolol. Nebivolol actually acts on the beta 3 agonism, increases the nitric oxide release in the peripheral vessels, where it causes peripheral vascular dilatation, and this minimizes the erectile dysfunction. अगर आप सिर्फ गूगल पे लिखेंगे nebivolol and erectile dysfunction, you'll get many articles telling you the erectile dysfunction is the least with nebivolol. And आपको ऐसी studies मिलेंगी जहां पे आप देखेंगे कि erectile dysfunction actually gets better with nebivolol, right? Now, I have just picked up a few to show you. Nebivolol protects erectile functions compared to metoprolol in hypertensive men with atherogenic, venogenic, and psychogenic erectile dysfunction. This was a prospective randomized crossover clinical trial. Another trial, beneficial effects of switching from beta blockers to nebivolol on the erectile function of hypertensive patient. इस स्टडी में जो दूसरे बीटा ब्लॉकर्स like metoprolol, atenolol, they were shifted to nebivolol, and the study suggests that nebivolol seems to have a beneficial effect on ED, possibly due to increased nitric oxide availability in the penile tissue blood vessels, right? And again, the effect of beta blockers on sexual dysfunction. Now, this was nebivolol versus metoprolol, and it showed that erectile dysfunction actually improved by giving nebivolol as compared to the conventionally used metoprolol. Nebivolol and anxiety disorders. Now, how common are anxiety disorders? If I ask you in your clinical practice, how many of you think that diabetics are anxious and depressed? कितने लोग ये समझते हैं, हाँ या ना? ओपनली बताना है. गुड. कितने परसेंट होगा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन 65% इन डायबिटीज. एंजाइटी डिसऑर्डर्स आपके ख्याल में कितने परसेंट होंगे डायबिटिक्स के अंदर? 70, 80, 60. रियासत, लेट्स डू अ स्टडी ऑन दिस. ठीक है, ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारे भी ख्याल है कि इतने ही नंबर्स हैं. ठीक है, सो वी डोंट हैव एग्जैक्ट डेटा, वी हैव अ डेटा विच सजेस्ट अराउंड 30-40%. लेकिन जो हालात हैं, वी अंडरस्टैंड दैट एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आर प्रीटी हाई. एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फियर, स्ट्रेस, वरी. अभी हम रात के 2 बजे जा रहे थे तो फैमिली पूछी 2 बजे कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा परेशान नहीं हो, कराची ये सब जाग रहे हैं रात के 2 बजे. ठीक है, कहीं नहीं जा रहे, गोइंग इनटू अ डे लाइट प्रोबेबली. ठीक है, एक परेशानी है, एक एंजाइटी है, सब परेशान है, क्या हो रहा है? सो डायबिटीज कैन लीड टू मूड स्विंग्स एंड बिहेवियरल चेंजेस.
Again, anxiety and depression through many pathologic processes increases the stroke, heart failure, cardiovascular disease, metabolic diseases. And what happens in anxiety? क्या चीज बढ़ जाती है anxiety में? The heart rate, right? Heart rate goes up. क्या आइडियल हार्ट रेट है? जब मैं लास्ट टाइम नेबिविलॉल पे टॉक दे रहा था तो प्रोफेसर आमिर हमीद बैठे हुए थे एकेयू के आगे, तो मैंने उनसे पूछा कि आइडियल हार्ट रेट कितना होना चाहिए, तो आपके ख्याल में आइडियल हार्ट रेट, आइडियल रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होना चाहिए? यस, 70, 80? तो सही जवाब देगा उनके लिए इनाम है, इनाम आपके जिम्मे है जी, ठीक है, मेरे जिम्मे नहीं है, मैं टॉक दे के चला जाऊंगा सैरी करके, ठीक है जी। कोई सही जवाब नहीं दे रहा, कहीं से आवाज आई? 50 to 60, सर ओनली अ कार्डियोलॉजिस्ट कैन टेल अस। सर के लिए तालियां बजाए कि हमने बड़ा सीखा है इनसे हमेशा। 50 to 60, आमिर हमीद ने एक ही बात बोली, 50 to 60। क्या हमारे डायबिटिक पेशेंट्स जो क्लिनिक में आते हैं उनका हार्ट रेट होता है 50 to 60 रेस्टिंग हार्ट? नेवर, ठीक है, दे आर ऑलवेज 90, 80, 100। What is the damaging effect of the heart rate, right? Now look at this study, resting heart rate and the risk of death and cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes. ये study बताती है कि among patients with type 2 diabetes, a higher resting heart rate is associated with an increased risk of death and cardiovascular complications. ज्यादा पेशेंट्स को प्रोफेसर अब्दुल रशीद के पास जाना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मोर्टेलिटी, राइट? सो कहने का मतलब है कि सिर्फ डायबिटीज नहीं देखनी ना, सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करना है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन से भी बचाना है, उसका हार्ट रेट भी कंट्रोल करना है। सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन हम अक्सर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं बाय गिविंग द ACE inhibitors, ARBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड द डायूरेटिक, लेकिन हार्ट रेट 80-90 पे होता है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए तो वैसे ही प्रोन है। So our approach should be such that we keep the heart rate also in the lower range, at least 50-60 नहीं, 50-60 तो प्रोफेसर अब्दुल रशीद और कार्डियोलॉजिस्ट हमें कहते हैं कि रखें, लेकिन हम कम से कम 60-70 पे तो लेकर आए उसको, बजाय 80-90 पे रहने के, ठीक है। So nebivolol is a combination therapy. Again, when we add nebivolol to medications like ARB ACE inhibitor or a diuretic or a calcium channel blocker, there is good reduction of both systolic and diastolic blood pressure. Earlier, पहले जब मुझे बीटा ब्लॉकर्स इतने पसंद नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ दोस साइड इफेक्ट्स लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्पेसिफिकली and the glucose levels that used to go up, I was not a very big fan of beta blockers. And then I realized कि anxiety, although कि FDA approved नहीं है beta blockers anxiety की treatment में, but controlling the heart rate can control anxiety to a lot of extent symptomatically. तो जब बीटा ब्लॉकर्स में नेबिविलॉल को मैंने पढ़ा आज से 1.5 साल पहले, इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड अबाउट नेबिविलॉल, और 15 आर्टिकल मैंने पढ़ लिए, एंड आई रियलाइज दैट हार्ट रेट नीड्स टू बी सेटल्ड, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन आई थॉट, ओके, on one end I have got my 3 agents, ACE inhibitor, ARB, calcium channel blocker and diuretic, controlling the blood pressure, but I made a habit of putting in a small dose maybe of a beta blocker, specifically nebivolol, to control that heart rate, ताकि उसकी एंजाइटी कंट्रोल हो, उसका हार्ट रेट, रेस्टिंग रेट नीचे आए, ताकि वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से बचे। So again, nebivolol versus carvedilol, if you see, the beta selectivity is much more in nebivolol, improvement in the EF is good, nitric oxide production, of course nebivolol beta 3 agonism करता है, the lipid profile doesn't get disturbed, the glucose profile doesn't get disturbed, क्योंकि beta 2 effect है ही नहीं ना तकरीबन, and bronchoconstriction भी इसमें नहीं है। So again, if you see nebivolol versus metoprolol, reduction in blood pressure, nebivolol does better than metoprolol in many studies. Nebivolol for the treatment of essential systemic arterial hypertension, this is a systemic review and a meta-analysis, और टाइम नहीं है कि पूरी बात हो तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि in systolic blood pressure management, nebivolol was superior to other beta blockers and diuretic and showed no difference in efficacy when compared with the ARBs or calcium channel blocker. So it was a pretty good antihypertensive as well, apart from controlling the heart rate, right? Nebivolol in metabolic syndrome में भी role है, ठीक है? Now let's see what is the role in metabolic syndrome. Effects of nebivolol treatment on glucose and lipid metabolism. Now again, this is in Annals of Clinical Pharmacology and Toxicology, and look at this. Nebivolol is a beta blocker. ये इनकी summary में आपसे बयान कर रहा हूँ जो उन्होंने अपने conclusion में लिखी। They say nebivolol is a beta blocker that must be positively used in patients with metabolic syndrome.
रिमेंबर डिसलिपिडीमिया को भी ट्रीट करना है, ये ना हो कि बीटा ब्लॉकर दिया और ट्राइग्लिसराइड लेवल ऊपर चले गया, एचडीएल नीचे आ गया और आपने कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बढ़ा दिया। एक तरफ कंट्रोल किया ब्लड प्रेशर, दूसरी तरफ से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गए या ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ गए। सो इट कॉजेज रिडक्शन इन द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एज वेल, and it decreases the insulin resistance and increase in the insulin sensitivity, and it decreases triglyceride and the cholesterol levels as well. इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होमा आईआर का इंडेक्स देखा गया बाय 6 week and a 6 month, by a 6 month treatment with nebivolol versus atenolol, it was seen that insulin resistance marker you came down with nebivolol compared to atenolol, and even the fasting blood glucose levels, they came down with nebivolol compared to atenolol treatment, and both were on standard diabetes treatment, right? Again, the effects of add-on nebivolol on blood pressure and glucose parameters in hypertensive patients. और यहाँ पे nebivolol added to ACE inhibitors and ARBs provided additional blood pressure reduction with little or no effect on glucose metabolism in hypertensive patients. Studies बहुत सारी थी, मैं निकालता चला गया स्टडीज, लेकिन मैंने कहा इतनी सारी बताई नहीं जाएगी ना, इतनी सारी हजम हो सकेगी सेरी पे, तो कुछ कुछ मैंने डाल दी, बाकी के लिए माजरत। नेबिविलोल इन हार्ट फेलियर, इसमें थोड़ी सी बात कर लूंगा। जाहिर है हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में यू कंट्रोल द हार्ट रेट, इट इज यूज्ड इन हार्ट फेलियर। प्रेवलेंस ऑफ हार्ट फेलियर एंड डायबिटीज, अगेन if you read this, prevalence of cardiac dysfunction in early stage of heart failure in asymptomatic diabetic patients ranges between 30 and 40%. इरेक्टाइल डिसफंक्शन 65% वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन हार्ट फेलियर भी एसिम्प्टोमेटिक इन 30 to 40% ऑफ डायबिटिक्स। हर चीज को होने के बाद तो ट्रीट करना जरूरी नहीं, जरूरी है कि मेरा पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आएगा तो ही मैंने उसको जो है वो कहना जी हार्ट फेलियर है, प्रोफेसर अब्दुल रशीद आप देख लीजिए, और बाद में उसको फिर हम बीटा ब्लॉकर क्रॉनिक हार्ट फेलियर में दे। कहने मतलब पहले से भी प्रीएम्प्ट करना है कि डायबिटीज में 40% को जी सीकेडी होती है, 40% को हार्ट फेलियर भी होता है, 65% को ईडी भी होता है। तो वी नीड टू लुक इन अ होलिस्टिक अप्रोच, सिर्फ ग्लूकोज लेवल को या सिर्फ ब्लड प्रेशर को नीचे करने की जरूरत नहीं है। अगेन इन हार्ट फेलियर द मोर्टेलिटी इज more 3.5 years compared to average life of 4.6 years without heart failure and diabetes. ये दो स्टडीज है, सीनियर्स एंड सीनियर सीएडी, में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ऑफ कोर्स इट प्रूव्स दैट nebivolol is used in heart failure. So again, if you see nebivolol is an all-rounder. क्रिकेट में तो all-rounder होता है ना, बैट्समैन है ना, बॉलर है ना, विकेट की काम सारे कर रहे हैं। So again, it treats hypertension, heart failure, reduces coronary artery disease, used as a treatment in atrial fibrillation. Again, डायबिटीज के लिए बेहतर है क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर होती है, इंसुलिन रिलीज भी बेहतर होती है, and again it controls there is less chances of getting an asthma or a chronic obstructive pulmonary disease and erectile dysfunction. It has a beneficial impact. याद रखें, this is a serious matter and needs to be considered. अक्सर मरीज बताएंगे नहीं, लेकिन a good physician will always inquire this, और जाहिर है 4 लोगों के सामने नहीं पूछेंगे आप, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह पूछना है, किस तरह ये कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह बात करनी है। गुड। So what we really need, ये मेरी आखिरी स्लाइड है, and then I'll bid farewell from you all. An antihypertensive drug which not only provides good blood pressure reduction but also significantly improves endothelial function, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कम कर रहा है, insulin sensitivity gets improved, erectile function gets improved, अगर improvement कम है तो फिर भी deterioration नहीं है at least, and reduces cardiovascular diseases. With this, thank you very much for patient listening. मुझे अंदाजा है सेरी पे सुनना समझना मुश्किल काम है, but you had been a wonderful audience. Thank you very much PCDA and Sir once again. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Ali, for such an enlightening talk. I was surprised to hear we are conducting these programs since 8 consecutive years, and this year it would be like on in 10 different centers in Pakistan. This year, and we are like this is 8 consecutive year we are conducting this, and we always have this kind of audience, very like interacting. Okay, without wasting any further time, we'll take questions while we will have breakfast. So, I would like to invite our newly elect General Secretary of Primary Care Diabetes Association for the second talk of the day. And
जी जनाब, डॉक्टर शाहिद अख्तर की बहुत सारी और खसूसियात हैं। हम हर महीने जो हमारा एक प्रिवेंशन फर्स्ट का न्यूज़लेटर आता है, उसके रूहे रवा हमारे डॉक्टर शाहिद भाई हैं और उनकी बहुत ज़बरदस्त एफ़र्ट है, बहुत टाइम देते हैं अपने इस वाली कोशिश को और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबे अरसे से हमने कोई मंथ मिस नहीं किया और हमेशा हर महीने की 15th को एंड 15th को हमारा न्यूज़लेटर आता है और a big round of applause for his great effort. The stage is all set for you. Assalamu alaikum, and thank you very much, Dr. Asma, for your kind words introducing me. Assalamu alaikum, Dr. Saab, Professor Abdul Rashid Saab, Professor Zaman Sheikh Saab, and Dr. Ali Raza. Thank you for tolerating me. असल में it is always difficult to talk after Dr. Ali Raza. He is so energetic, so fluent. It seems you are sitting in a bullet train. And after traveling then that bullet train, now I ask you please to get on board on Mohenjo-daro Express. Please come with me on Mohenjo-daro Express. सर हमने अभी रिसेंटली मोहनजोदारो एक्सप्रेस पे एक बड़ा ज़बरदस्त हमने एक प्रोग्राम किया है, एक क्रॉस एक हमने एक्टिविटी की है। जितने भी स्टेशंस उसके रास्ते में आते हैं मोहनजोदारो एक्सप्रेस के, वहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे और अवेयरनेस सेशंस कर रहे थे, तो इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम। तो बहरहाल मेरी मोहनजोदारो एक्सप्रेस शुरू होती है और असल में it's a शहरी PCDA शहरी program, and it's not complete without talking about Ramadan and without talking about diabetes. So लेकिन चूंकि हम हमारे आगे भी कुछ कंपोनेंट्स हैं इस प्रोग्राम की सेमिनार के, आगे कुछ और भी सेशंस हैं, तो इसलिए मैं इसको एज ब्रीफ एज पॉसिबल इसको रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है यूज ऑफ ट्रिपल रेजिमेन ऑफ empagliflozin plus plus linagliptin and plus metformin in Ramadan perspective. आप डॉक्टर अली रजा को इस शहर में इतनी बार सुना होगा आपने इस कॉम्बिनेशन के ऊपर कि वो याद हो चुकी होंगी लिनाग्लिप्टिन के बारे में सारी स्लाइड्स और मेटफॉर्मिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन की सारी स्लाइड्स। बट एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल ये है कि इट्स रोल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, दिस ट्रायो कॉम्बिनेशन इन रमजान। और अब मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता सर, अगर बताएं कि इस कॉम्बिनेशन पर कोई रमज़ान पर्सपेक्टिव के हवाले से कोई स्टडी हुई हो। अभी तक तो शायद नहीं है, लेकिन अलग अलग जो एम्पा के हवाले से और अलग अलग मेटफॉर्मिन और अलग अलग बाकी सब चीज़ों के ऊपर जो हमारे पास डाटा मौजूद है, उसी के हवाले से हम कह सकते हैं कि दिस कॉम्बिनेशन, दिस ट्रायो, दिस कॉम्बो इज वंडरफुल मेडिसिन टू मैनेज योर हाइपोग्लाइसेमिया ऑफ डायबिटीज इन ड्यूरिंग रमज़ान फास्टिंग। So I will start by presentation. कैसे फॉरवर्ड करिए? अस्सलाम वालेकुम। So when we talk about Ramadan, we talk about things in different way. जैसे मेडिको लीगल होता है, इस तरीके से एक मेडिको रिलीजियस एस्पेक्ट होता है। तब इसका जब हम बात करते हैं डायबिटीज एंड रमजान की, डायबिटो रिलीजियस इसलिए कि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक रिलीजन के ऑर्डर्स, रिलीजन की जो रिकमेंडेशन है वो क्या कहती हैं, और डॉक्टर की रिकमेंडेशन क्या कहती हैं। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं आपस में टकराव होता है, जिसकी वजह से हम शायद अपने फास्टिंग डायबिटिक पेशेंट्स को पूरी तरीके से ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और ये इशू बहुत अरसे से फील किया जा रहा है। और इसीलिए जो गाइडलाइंस नई नई बनाई जा रही हैं, उन गाइडलाइंस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, जिसमें रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी होते हैं और जिसमें मेडिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो सवाल ये उठा कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हम ये डिस्कस करते हैं बार बार कि फास्टिंग डायबिटिक के साथ क्या मसले हैं। मसले ये हैं कि वैसे भी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज तो आप सब जानते हैं कि जब डायबिटीज की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं विद ओरल एंटी डायबिटिक्स और विद इंसुलिन, तो यू कम अक्रॉस मैनी कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो। जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो ट्रीटमेंट रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो भी हम फेस कर रहे होते हैं। बट दीज कॉम्प्लिकेशंस, जो ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं ड्यूरिंग फास्टिंग ऑफ रमज़ान।
तो इसलिए अगर वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और सब हम सब जानते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया इज द कॉमनेस्ट वन, एंड हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन एंड thrombosis, etc. These are commonest complications which we come across during fasting during Ramadan. तो ये एपीडीआर एक सर्वे था, ऑब्जर्वेशनल सर्वे। उसमें ये देखा गया था सबसे पहले कि इट्स जो ये रिसेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये पुरानी स्लाइड है, ये 2003 में ये सर्वे हुआ था, और उसमें ये बताया गया था कि टाइप 2 डायबिटिक्स को तकरीबन 7.4 ज़्यादा इम्कान होता है, यानी 7.5 गुना ज़्यादा। ये इसका मतलब 750% है यानी ये नहीं है कि 7% या 7.5%, ये है तकरीबन 7.4 टाइप ज़्यादा इम्कान होता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया का, टाइप 2 के पेशेंट्स जब रोज़ा रख रहे होते हैं। इसी तरीके से हाइपरग्लाइसीमिया का इम्कान भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर 3-fold increase in the incidence of severe hyperglycemia without ketoacidosis in type 1, or 5-fold increase in the incidence of severe hypoglycemia requiring hospitalization in patients with type 2 diabetes. और इसी तरीके से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का इम्कान, रिस्क में पेशेंट विद डायबिटीज who fast during Ramadan are at increased risk of developing diabetic ketoacidosis, particularly if poorly controlled before Ramadan. The risk may further increase due to excessive reduction of insulin dosages जो होते हैं। इंसुलिन डोज हमारे यहाँ एक जो पेशेंट्स का एटीट्यूड और बिहेवियर ये है, कुछ क्लास ऑफ डायबिटिक्स ऐसी है जो इंसुलिन पर हैं कि वो डॉक्टरी रमज़ान असेसमेंट और इवेल्यूशन की और रिस्क सर्टिफिकेशन का तकल्लुफ करते ही नहीं है। वो बस चुपचाप खामोशी से घर बैठ के इंसुलिन छोड़ देते हैं कि ना इंसुलिन लगाएंगे ना मसाइल होंगे, और या फिर दूसरी गलती ये कर रहे होते हैं कि उसी डोज से इंसुलिन लगा रहे होते हैं जिस डोज से प्री रमज़ान लगा रहे होते हैं, यानी हायर डोज इन मॉर्निंग और स्मॉलर डोज इन इवनिंग, और इस गलती की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए प्री रमज़ान असेसमेंट वगैरह बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉम्प्लिकेशन उन लोगों में ज़्यादा देखने में आती है जो इंसुलिन या तो बंद कर देते हैं या गलत लगा रहे होते हैं। इसी तरीके से डिहाइड्रेशन और थ्रोम्बोसिस 13 इस साल हमारे यहाँ 13 आवर्स का है फास्टिंग, लेकिन दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में 16 आवर्स तक भी होती है फास्टिंग। तो डिहाइड्रेशन और थ्रोम्बोसिस का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी तरीके से और दूसरी कॉम्प्लिकेशन। तो जब हम चूज़ करने लगते हैं कि मेडिसिन कौन सी सेफ है ड्यूरिंग रमज़ान, तो सबसे पहले जो कंसिडरेशन हम करते हैं वो ये है कि चूज़ दोज मेडिसिन, और ये सब उस वक्त पॉसिबल है कि अगर प्री रमज़ान इवेल्युएशन ज़रा प्रॉपर टाइम पे की जाए, शाबान में और रजब में की जाए। ये नहीं कि रमज़ान के अब मिड में हम 16वें रोज़े की बात कर रहे हैं इस वक्त, और 16वें रोज़े को हम उसकी ड्रग एडजस्टमेंट कर रहे हों, ये मुनासिब नहीं होता, बल्कि ये तकरीबन 1.5 मंथ या 1 मंथ बिफोर इवेल्युएशन रिस्क सर्टिफिकेशन करके और उसकी डोजेस को उसके पैरामीटर्स और उसके सिनेरियोज के मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए। तो लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं तमाम ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस के, जो कि इस स्लाइड में दिखाए गए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा जो कंसिडरेशन हमारी होगी इस वक्त जो सिनेरियो वो ये है कि ऐसी मेडिसिन चूज़ करना है जो हाइपोग्लाइसीमिया का ना करेगा। तो इसलिए जो हमारे इस जो लिस्ट में या हमारे पास जो कॉमन यूज में हम मेडिसिन हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सल्फोनेलुरिया और बाइगोनाइड्स एंड SGLT2 inhibitors and other DPP4 inhibitors, और thiazolidine आर लीस्ट यूज, और अब तो हमारे शायद बहुत कम इस्तेमाल रह गया उनका, और एकाबोज वगैरह भी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है। जो कॉमनेस्ट जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशन हमारे यहाँ इस्तेमाल में है वो बाइगोनाइड्स, जिसमें द ओनली सॉल्ट इज अवेलेबल मेटफॉर्मिन, तो वो, और सल्फोनेलुरिया, DPP4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर्स, ये ओरल मेडिकेशंस हैं हमारे यहाँ जो इस्तेमाल में है। तो अगर रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ही को सिर्फ फीचर बना के हम आज डिस्कस करें कि एक रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया करने वाली मेडिसिन को ज़रा अलग कर दें, और जिनका हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क नहीं है वो अलग कर लें। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 2 ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है सबसे ज़्यादा रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया रखती हैं, एंड दे आर सल्फोनेलुरिया एंड इंसुलिन इटसेल्फ। और इसी तरीके से और दूसरी जो मेडिकेशंस हैं वो उनका रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कम है। तो गाइडलाइंस भी जब हम हमारे सामने आती हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ डायबिटीज़, जब हम मैनेज करने लगते हैं तो जो पैरामीटर्स हमारे सामने होते हैं वो पैरामीटर्स दो तरह से रखे जाते हैं। एक तो कुछ जो
कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से कि अगर वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का है, एचएफ का है, हार्ट फेलियर का है, सीकेडी का है, एक इस तरह से एल्गोरिदम डिज़ाइन किए गए हैं। और ये एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो एएसयू का है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने जो ये वाला एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है, दिस शोज डिफरेंट सिनेरियोज कि इन सिनेरियोज में कौन कौन सी ज़्यादा प्रायोरिटी मेडिसिन हमारी हो सकती हैं। इन्होंने सिनेरियोज जो दिए हैं वो सिनेरियोज हैं कि ओवरवेट और ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये वाली टैब, और इसी तरीके से हाइपोग्लाइसीमिया जिनका रिस्क है उनके लिए ये वाली टैब सूटेबल है। ये इनकी रिकमेंडेशंस हैं वेरियस सिनेरियोज में, और एक से ज़्यादा सिनेरियोज भी ओवरलैप कर सकते हैं, इसलिए हमें चूज करने में उन मेडिसिन को सेलेक्ट करना चाहिए जो इन सिनेरियोज के नीचे आती हैं। तो हमने आज हमारा कंसर्न ये है कि हम ऐसी चूज करें मेडिसिन जो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती। तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती तो उसमें जो रिकमेंडेशन है इसमें गाइडलाइन के अंदर वो GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग और GIP-GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग और SGLT2 इनहिबिटर मोस्ट प्रायोरिटी मेडिसिन है। इसमें से अब देखा जाए तो हमारे यहाँ कितने लोग जो है हमारे जो है वो GLPs के ऊपर हैं, बहुत रेयर, बहुत कम है जो। और चूंकि हम बात आज हम कर भी रहे हैं सिर्फ ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस की, तो लिहाजा जो GLP ओरल तो अभी तक सिर्फ एक ही आया है पाकिस्तान में, वो अभी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो लेकिन बाकी सारे, और ये GLP और GIP कंबाइंड जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो अभी तक पाकिस्तान में शायद है नहीं। ट्रिजेपेटाइड शायद पाकिस्तान में है, अभी नहीं है। तो इसलिए इसको तो हम चूज नहीं करते अपने पेशेंट के लिए। इस टैब में दूसरा जो और करके लिखा हुआ है और SGLT2 इनहिबिटर, तो जितना सेफ हमारे लिए GLP GIP या कंबाइंड GIP GLP है उतना ही सेफ SGLT है। तो हमारे लिए जो बेस्ट चॉइस हो सकता है वो हमारे लिए ये जो SGLT2 इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस हो सकते हैं अगर हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क हमारा अगर ज़्यादा हो किसी पेशेंट का। और इसी तरीके से दूसरा जो है DPP-4 इनहिबिटर और थायोजोलिडिन डायोन्स। थायोजोलिडिन डायोन्स अब इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो DPP-4 इनहिबिटर्स के ऊपर हैं या SGLT2 इनहिबिटर्स के ऊपर। सॉरी, ये साइमल्टेनियसली दो बटन प्रेस हो जाते हैं। So when talking about this scenario, and scenario is risk of hypoglycemia, the most suitable medications for in this scenario is according to these guidelines, and most of the guidelines, these medications are safe: SGLT2 inhibitors, DPP-4 inhibitors, and metformin. Remember, ये सारी रिकमेंडेशन है आफ्टर मेटफॉर्मिन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और मेटफॉर्मिन है। यानी इससे पहले की जो हमने एल्गोरिदम में ऊपर की टैब नहीं पढ़ी थी वो ये थी कि आफ्टर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड आफ्टर मेटफॉर्मिन जब कोई ड्रग एड ऑन करनी हो तो वो कौन सी है, वो इस सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डोंट फॉरगेट मेटफॉर्मिन, कि मेटफॉर्मिन पहली मेडिकेशन है जो कि ऐड की जाती है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ। फिर उसके बाद फिर जो चूज करनी है अगर हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क है तो वो ये वाली मेडिकेशन हो सकती है। तो SGLT2 सेफ है, DPP-4 सेफ है हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क के हवाले से। और अवॉइड करना चाहिए सल्फोनेलूरिया और ग्लिटेनाइड्स। जो ग्लिटेनाइड पाकिस्तान में एक ही है सिर्फ, और वो भी ज़्यादा कॉमन यूज़ में नहीं है, लेकिन सल्फोनेलूरिया बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ। तो अब जब हम टॉक करते करते हम मेटफॉर्मिन के ऊपर आ गए हैं, तो बाइगोनाइड्स ग्रुप की इकलौती मेडिकेशन जो है मेटफॉर्मिन मार्केट के अंदर है। और ये क्या करती है ये सब आपको मालूम है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस कम करती है, और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कम करती है। उसके नतीजे में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लोअरिंग इफेक्ट इसका जो है इट्स कॉज बाय it decreases hepatic gluconeogenesis and it increases insulin sensitivity at tissue level। और इसी तरीके से आगे चल के देखते हैं तो दूसरे सॉल्ट्स DPP-4 इनहिबिटर्स। DPP-4 इनहिबिटर आप सब जानते हैं कि ये जो हमारी इंट्रिंसिक फिजियोलॉजिकल GLP जो रिलीज हो रही होती है हमारे जो एंटेरिक सेल्स एल सेल्स से, उनको जो डिग्रेड करने वाला एंजाइम है DPP-4, उसको किल करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो सॉल्ट्स, वो कहलाते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स। और उसमें कॉमन है सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन वगैरह कॉमन यूज में है। इसके अलावा भी हैं ट्रेलाग्लिप्टिन वगैरह, वंस अ वीक आजकल आ गई है।
और भी कुछ ग्लिप्टिन्स मार्केट में मौजूद हैं। तो ऑल DPP-4 इनहिबिटर्स दे इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रिंसिक और फिजियोलॉजिकल GLP-1, और ये दे आर सपोज टू बी सेफर एज कम्पेयर विद सल्फोनेलुरिया एंड प्लेटिनाइड्स एक्सेट्रा। और ये तीसरा जो सॉल्ट या ये इससे पहले इसकी एक स्टडी जिक्र करने सर ने कई दफ़ा अपने प्रोग्रामों में कामिलिना स्टडी का जिक्र किया है, कैरोलिना और कामिलिना का। कामिलिना ट्रायल जो है वो लीनाग्लिप्टिन के हवाले से होने वाला जो है सबसे मशहूर ट्रायल था, और उसमें ये दिखाया गया कि 3 के हवाले से, यानी कि जो रिस्क फैक्टर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स के हवाले से आउटकम देखे गए थे, तो इट वाज फाउंड टू बी वेरी सेफ। लेकिन चूंकि आज हम इसका कोई दूसरे इफेक्ट्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसकी हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कहीं भी किसी भी स्टडी में ये साबित नहीं हुआ था कि ये हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क जो है वो बढ़ाती है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क कम करती है, बल्कि ये को दूसरी कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रोटेक्ट करती है। तो SGLT2 इनहिबिटर्स तीसरा, इस कॉम्बो के अंदर जो तीसरा सॉल्ट हमारे पास ऐड हुआ है एम्पाग्लिफ्लोजिन, वो SGLT2 इनहिबिटर है। और SGLT2 इनहिबिटर्स जो हैं वो ग्लाइकोसूरिया कॉज करके, यानी ग्लूकोज का बर्डन हमारे बॉडी में से यूरिन के जरिए या किडनी के जरिए एक्सक्रीट आउट कराने में मदद करती है, और ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और एम्पायरिक आउटकम ट्रायल तो ऐसा मार्वलस 2015 में जो ये जब सामने आया, तो इसने फर्स्ट टाइम जो है आई ओपनिंग ट्रायल था। इसने ये बताया कि सिर्फ सीटाग्लिप्टिन के हवाले से जो पहले ट्रायल्स हुए थे, टिकॉस ट्रायल, तो उसने तो उसे बताया था कि कार्डियोवैस्कुलरली सेफ है, लेकिन इसने सेफ्टी नहीं बल्कि बियॉन्ड सेफ्टी इसने बेनिफिट सब दिखाने वाली जो सबसे पहला जो ट्रायल था वो एम्पायरिक आउटकम ट्रायल था। और उसके बाद फिर एम्पाग्लिफ्लोजिन के हवाले से तो स्टडीज और ट्रायल्स की लाइन लग गई, और उसके बाद फिर एम्पायर ट्रायल, एम्पायर में भी बहुत सारे जो है एम्पायर रिड्यूस्ड और एम्पायर दूसरे और इसके एम्पायर किडनी ट्रायल जो है, इसका कौन सा था किडनी ट्रायल से इसका एम्पा किडनी ट्रायल, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ट्रायल। फिर आजकल जो है वो HF के हवाले से कुछ नए ट्रायल्स भी ऑन द वे हैं इसके, तो वो सब आ रहे हैं। लेकिन ये सब बेनिफिट आज हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हाउ मच सेफ इट इज़ इन टर्म्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क। इट इज़ मच सेफर देन अदर oral medications than अब ये तो डिसाइड हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम्स कि मेटफॉर्मिन, SGLT2 inhibitors and DPP-4 inhibitors are much safer in terms of hypoglycemia risk, and we can use them safely in managing hypoglycemia of diabetes. लेकिन व्हाट अबाउट रमज़ान? रमज़ान में जब ये चीज़ें ये हम इस्तेमाल करते रहे हैं एक अरसे से, तो डोज एडजस्टमेंट इस तरीके से किया करते थे कि अगर पेशेंट और मेटफॉर्मिन के ऊपर है और वो मॉर्निंग और इवनिंग दो डोज के अंदर ले रहा है, तो मॉर्निंग की डोज को हम इफ्तार के वक्त ले जाते हैं, और इवनिंग की डोज को सहर के वक्त ले जाते हैं सेम। और इसी तरीके से कार्बोन जो यूज में नहीं है हमारी, और DPP-4 इनहिबिटर्स आमतौर पर मॉर्निंग में दी जाती है, तो उसको हम इफ्तार के वक्त शिफ्ट कर दिया करते हैं। थायरोजोलिडिन डायोन्स हमारे इस्तेमाल में ज़्यादा नहीं है, लेकिन SGLT2 इनहिबिटर्स जो इस्तेमाल में है वो हम जो मॉर्निंग में दिया करते हैं वो उसको इफ्तार के वक्त दे देते हैं। तो ये तो डोज एडजस्टमेंट थी, और सल्फोनाइलूरिया की डोज एडजस्टमेंट इसी तरीके से की जाती है, जो आज हमारी प्रीफर्ड मेडिसिन नहीं है। हमारी प्रीफर्ड मेडिसिन वही दो थी, तीन थी, SGLT2 इनहिबिटर और मेटफॉर्मिन और लीनाग्लिप्टिन। तो ये तो डोज एडजस्टमेंट का एक आ गया। बेनिफिट क्या है फिर इसका? अब कम्बिनेशन की बात शुरू हो गई है। कम्बिनेशन क्यों? हम ये मेडिसिन तीनों अलग अलग देते रहे हैं और बस सेफ रही हैं तीनों की तीनों। अब कॉम्बिनेशन इसलिए कि पेशेंट्स की कंप्लाइंस का इशू है कि तीन मेडिकेशन वो एक जो ले रहा होता है, तो अलग अलग डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें आपको तीनों एक साथ एडजस्ट करने में आसानी रहती है, और डोज टाइट्रेशन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो द 3 drugs with low risk of hypoglycemia ensuring blood glucose homeostasis and can be used once or twice daily according to the individual's need. And dose titration easy हो जाती है because of the availability of the various formulations, जो मुख्तलिफ formulations में मौजूद हैं। Benefits ये है कि 35% of patient with A1C अगर एक lower than 8.5 स्टिल उनको ज़रूरत है कि थर्ड एडिशन की जाए, तो अगर मेटफॉर्मिन और लीनाग्लिप्टिन के बाद उसको थर्ड इस कॉम्बो पे रखते हैं, तो रिवाइटलाइज, एनर्जाइज, ये तो इररेलेवेंट
पॉइंट्स है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन 3 in 1 पिल का जो सोल्यूशन है, ये रीइंफोर्स करती है एंड एक्सपेंड करती है यूजेज अमंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो मेटफॉर्मिन एंड लिनाक्सिडिन कॉम्बिनेशन जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यूज़ किया जा सकता है इन स्पेशली पेशेंट्स विद रमज़ान फास्टिंग, बिकॉज इनकी अलग अलग सेफ्टी एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है। लेकिन चूंकि अभी तक कोई ट्रायल्स हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि दिस कॉम्बो ड्रग इज न्यूअर वन एज कम्पेयर विद अदर एग्जिस्टिंग सॉल्ट, तो इसलिए अभी तक कोई ट्रायल्स नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन और अपनी प्रायोरिटी की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि दिस कॉम्बो कैन बी यूज्ड इन फास्टिंग रमज़ान। तो डोज ये इन स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो इसके अलावा कोई खास चीज़ इसके अंदर है नहीं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Shahid. Um, with some time, I can take around like 3 to 4 questions if somebody has a very burning question for the speakers. I must say, if anybody has. I'm happy to say there's no hand raising. So I would like Professor Zaman Sheikh to have some comments regarding this program. Uh, Sir, आ जाएं sir, please. मैं तो thank you sir. थैंक यू थैंक यू डॉक्टर आसमा। ये पीसीडीए ज़रा अपना अपना सा लगता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट हैं मेजॉरिटी, और सारे दोस्त हैं, ज़्यादातर जूनियर कुलीग्स हैं, तो यहाँ अपना माहौल लगता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पीसीडीए मेरी अपनी एसोसिएशन है। अच्छा भाई, टू फैंटास्टिक स्पीकर्स एंड विद फैंटास्टिक टॉपिक्स। वन वाज अली असगर। जब शहरी में भाई इनको जरूर बुलाना है शहरी के सेमिनार में नेक्स्ट टाइम। इतनी बम्बार्डमेंट होती है क्वेश्चंस की, और इतना इंफॉर्मेटिव होता है कि नोबडी कैन स्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर। अच्छा भाई, शाहिद अख्तर के बारे में पहले मैं बताता हूँ कि एक्सीलेंट टॉक, और इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि इतना जामा मुख्तसर और जामा था आपका जो लेक्चर था। एक सिर्फ कमेंट मेरी है कि 3 in 1 में ज़्यादातर जो पेशेंट रिलेक्टेंट है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ साइज ऑफ द टेबलेट। इतनी साइज, सब कुछ गोलियां खा लेते हैं, ये कहते हैं सर गले में अटकती है। इट इज़ साइकोजेनिक इफेक्ट, बट इट इज़ देयर। तो मैंने इनको फार्मास्यूटिकल कंपनी को सजेशन दी थी कि वाई नॉट एक सार 500 मेटफॉर्मिन, आधी साइज रह जाएगी। तो देयर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, हल वाले बता सकते हैं। आप देखें ना, हर बाकी 2 दवाएं डिफरेंट उसमें है प्रोपोर्शन में। मेटफॉर्मिन 1000 है सब में, हालांकि 500 हो सकती है, क्यों नहीं, हम वंस अ डे भी दे सकते हैं। तो ये अगर टेक्निकली कभी सॉल्व हो जाए तो आसान हो जाएगा। अच्छा भाई, रिगार्डिंग अली असगर, आफ्टर टॉकिंग हिज पर्सनालिटी के डायनामिक स्पीकर और वेकअप कॉल देते हैं। अच्छा, फ्यू पॉइंट्स अबाउट हाइपरटेंशन। रशीद साहब भी बैठे हैं। अच्छा भाई देखिए, हाइपरटेंशन को अगर डायबिटीज से कंपेयर करें तो डायबिटीज में हम बहुत ही डिसिप्लिन्ड है एज कंपेयर्ड विथ हाइपरटेंशन। उसका रीजन बताऊं क्या है। अब जेएनसी 7 और 8 को कंपेयर करें, जमीन आसमान का फर्क है। सर जेएनसी काफी अरसे के बाद आई, जेएनसी 8 वो भी ऐसी आई कि बहुत सारों ने तो कहा कि भाई ये हम नहीं, इवन जो मेंबर थे 11 थे मेरा ख्याल है, उसमें 8 ने होके क्या 3 ने उस वक्त भी कहा था कि ये सही नहीं है। पर बहरहाल मेजॉरिटी ने कहा तो जेएनसी 8 हो गई। बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई। इतना हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल का है कि फिर सबने रिजेक्ट किया। लाइक इन डायबिटीज किडनी सीकेडी, उसमें भी इतना 90 तक का डायस्टोलिक सही है, व्हिच इज ऑब्वियसली आई डोंट एग्री। आई डोंट नो रशीद साहब व्हाट ही विल से। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई चंद कंडीशंस है बिफोर चेकिंग हाइपरटेंशन। भाई 5 मिनट उसको लिटा दो, फिर सांस भी आस्ता ले, और हरकत भी न करे, काफी भी न पिए, स्मोकिंग आधा घंटा पहले नहीं की है।
तो ये देखिए ना, एक सीजीएम है, सीजीएम के इक्विवेलेंट क्या हो सकता है ब्लड प्रेशर का? कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। अब दिन में एक दफा दो दफा करते हैं, उस पर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इज इट करेक्ट? डायबिटीज में हम कहते हैं भाई सीजीएम चाहिए, हमें 7 दफा ब्लड शुगर चाहिए, और ब्लड प्रेशर में एक दो रीडिंग क्लिनिक पे करके या कहीं करके हम कहते हैं कि भाई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, व्हिच इज रॉन्ग। सीजीएम का इक्विवेलेंट है कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो हम नहीं करते, करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि रेस्टिंग सिचुएशन में क्यों करें हम? ये मेरे देखे ना, आप इसमें सोचिएगा, रेस्टिंग में क्यों करें भाई? सीजीएम होता है कि 24 आवर आप कैसे गुजारते हैं लाइफ। अब कभी आप गाड़ी चलाते हैं बंदर रोड पे, आधा आधा घंटा ट्रैफिक जाम है, आपका ब्लड प्रेशर कितना होगा मुझे बताइए? रेस्टिंग होगा? आप नोट करें कि सवाए स्लीप के हमारा कुछ ना कुछ टेंशन होता है। ये खाना बेगम ने खराब पकाया, ये भी टेंशन होता है। आई एम सॉरी यार, मुझे घर जाना है। मतलब हर तरह की टेंशन। बॉस नाराज हो गया जनाब, उससे ज्यादा बड़ा कोई टेंशन हो ही नहीं सकता। मुलाजमत, बेरोजगारी का खतरा, भाई वो हम उस पे हैं, सरकारी उस पे हैं, एडाक पे जो आजकल लेते हैं कंटेंट बेसिस पे, कल निकाल देंगे, टेंशन ही टेंशन। तो भाई हम ज्यादातर लाइफ टेंशन में गुजारते हैं या रेस्टिंग गुजारते हैं? तो रेस्टिंग का बीपी क्यों लेते हैं हम भाई? हम 24 आवर फास्टिंग तो नहीं करते। शुगर हम स्ट्रेस देख के नाश्ते का 2 आवर पोस्ट पैरेंटल भी कराते हैं ना, तो इसमें भी करना चाहिए ना। टेंशन देखे कि भाई आप गाड़ी में बैठो और ब्रेक लगाओ सडन, आगे दूसरी गाड़ी, फिर बीपी तुम्हारा चेक करेंगे, वो है हमारा रैंडम ब्लड शुगर। तो आप सोचिएगा इस पे, ये सारे गलत है तस्वुरात। भाई क्यों रेस्ट कराएं हम? अब हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में रेस्ट नहीं करते तो क्यों कराएं रेस्ट? बहरहाल ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक बीपी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इट इज अ न्यूसेंस। रादर मैं कहता हूं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, वो कस्टम से ये वापस भेजना चाहिए, शिप में वापस जाओ। आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है? रियली इतना? आप 3 रीडिंग ले, मेरा दावा है, खैर मैं प्राइस तो नहीं दूंगा आपकी तरफ, हाँ, मगर ऐसे दावा कर रहा हूं कि 3 रीडिंग अगर इक्वल आ जाए ना, ईमान से मैं हार मान लूंगा। नहीं, और इतना डिफरेंस आता है 10-20 का। आपको पता है कि हाइपरटेंशन में 2-3 मिलीमीटर काउंट्स। स्टडी में देखें, दिस ड्रग इज सुपीरियर बिकॉज 3-4 मिलीमीटर रिड्यूस ब्लड शुगर, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। आप देखिएगा बहुत सारी स्टडी है, 4-5। भाई नमक बिल्कुल नहीं खाओ, सिर्फ 6 मिलीमीटर कम होगा आपका। ये डेश स्टडी, नमक नहीं खाओ भाई, वो पता नहीं 5 ग्राम जो आधा चम्मच होता है वो कौन खाएगा 24 घंटे में? माना ना खाओ ना, तो फिर भी 6 मिलीमीटर कम होता है। तो 6 मिलीमीटर तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक तोड़ा देता है, वो तो 20-20 का फर्क आता है। डायस्टोलिक कभी 90 आएगा, फिर करोगे 70 आएगा। तो प्लीज डोंट यूज इलेक्ट्रॉनिक, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, कभी नहीं। अच्छा सा वो करें, वो भी कंपेयर करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि रिगार्डिंग बीटा ब्लॉकर। अच्छा, हम जब आपकी तरह यंग थे तो बीटा ब्लॉकर को जो जो इम्तिहान में बता था ना, हार्ट फेल्यूर में बीटा ब्लॉकर, उसको स्ट्रेट अवे फेल, फेल। और अब बीटा ब्लॉकर जो न बताए उसको फेल करते हैं, बिकॉज ऑफ नेबी विलॉट। ये अच्छा देखिए, वही यूज मोस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में? मोस्ट कॉमनली कौन सी ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? एम्लोडिपिन एंड वेल्सार्टान। अब ये देखिए, दोनों टेकिकार्डिया करते हैं। नार्वेस तो, ये तो एम्लोडिपिन तो बदनाम है बहुत, मगर वो भी तो करती है एसी इनहिबिटर, दोनों बहुत काजेस टेकिकार्डिया। अब पहले ये इन्होंने डरा दिया कि भाई 50 होना चाहिए पल्स रेट और तो मेरा मशवरा ये, और मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, कि इफ दीज टू ड्रग्स in the dose of 580 they are not working, instead of increasing the dose to 10-160, please add this type of drugs nebivolol। तो वो बीपी का इतना फर्स्ट क्लास कंट्रोल होता है, क्योंकि डिफरेंट मैकेनिज्म आ गया ना, बजाय इसको बढ़ाते जाएं आसमान पे। मैंने 320 भी देखा है, वर्ल्ड साल्टान देते हैं 320। अरे भाई नहीं करती तो छोड़ो उसको, 320 क्या मतलब है भाई? साइड इफेक्ट नहीं है तो हम मिस बढ़ाते जाओ क्या डोज? तो you add beta blocker and you see the difference।
पल्स रेट भी कम हो जाएगा और ड्रास्टिक हो चेंज हो जाएगा। अच्छा भाई, आई कांग्रेचुलेट यू। ईडी के लिए इतना वो शर्माते हैं स्पीकर, आपने साइंटिफिकली बहुत अच्छा बोला ईडी के लिए। और देखिए ना, ये नाइट्रिक एसिड का एसिड कह रहा हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड का कमाल है, विच इज पोटेंट वेजोडायलेटर। अब ये जो सिल्डेनाफिल यूज करते हैं, या किसी जमाने में केवरजेट बहुत आम थी यहाँ पे, अल्प्रास्टाटिल जो है वो भी तो नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू एड करती है ना, तो ये भी वही मैकेनिज्म है, तो डबल ट्रिपल फायदा है। अच्छा भाई, हम बचपन से पढ़ते आए थे कि व्हाट इज द नॉर्मल पल्स, किताबों में क्या लिखा हुआ है? हाँ, किताबों में क्या लिखा हुआ है? 60 कम से कम, उससे नीचे ब्रेडिकार्डिया है, 100 उसकी, यानी बचपन से पढ़ते आए थे। अब हम कहते हैं नहीं 50 होना चाहिए। तो देखिए, ये लेसन है हमारे लिए कि मेडिसिन स्टेटिक नहीं है हमारी। बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन मेडिसिन। अच्छा भाई, हैविंग सेड दिस, आई से थैंक यू वंस अगेन टू पीसीडीए एंड सेल फार्मा। थैंक यू। With this, I would like to welcome our third panelist, the most vibrant young panelist, recently promoted to Professor Zishan. He is head of department and professor of medicine in JPMC. Sir, for a few kind words. थैंक यू आसमा। अब ये ऐसे ही कर दिया कि शायद अख्तर को आपने खड़ा कर दिया था लिए सो जमान साहब की बात बोलना, इट डजंट लुक फन। आप सब लोगों को सहरी की भी ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा हेवी डोज मिल चुका है, आई मस्ट से दैट, एंड अब सहरी की ज़रूरत है, आप सहरी करें। नहीं जनाब, हमारे अभी शो स्टॉपर मौजूद हैं। हमारे भैया, सर काइंडली प्लीज इफ यू हैव फ्यू वर्ड्स। डॉक्टर अस्मा और पीसीडीए बहुत बहुत मुबारक हो इस प्रोग्राम का। मसला ये है कि डॉक्टर जमान शेख ने जो बातें की हैं उनका अगर जवाब देना शुरू करूँ मैं, तो मुझे हमें 1 घंटा देना चाहिए, अब स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बहुत अच्छा बात की कि आप ब्लड प्रेशर को बार बार क्यों नहीं चेक करते। असल में पाकिस्तान में लोग एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर के मुतालिक जानते ही नहीं है, और ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट जब तक आप एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर यूज़ ना करें, आप ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि 24 घंटे का आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है क्या दवा देनी है। सोते में कितना ब्लड प्रेशर है, जागते में कितना ब्लड प्रेशर है, टेंशन में कितना ब्लड प्रेशर है, बीवी से लड़ने के बाद कितना ब्लड प्रेशर होता है, और अपने हादसा से लड़ने के बाद कितना ब्लड प्रेशर होता है। जब तक आपको मालूम है, उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या दवा देनी चाहिए, किस वक्त देनी चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने जो बहुत कंट्रोवर्शियल बात की कि आप ब्लड प्रेशर जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक को फेंक दें। ये अब जितनी भी हाइपरटेंशन की सोसाइटीज हैं, जिसमें WHO भी मालूम है और ICH में उसने मर्करी ब्लड प्रेशर को मसरू कर दिया है, बैन कर दिया है, और ओनली यू कैन यूज ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर। उसके लिए कहा गया कि आप 3 दफ़ा लें, 3 दफ़ा कम से कम लें दो, और जो सबसे कम रीडिंग आती है वो आप अगर लेंगे तो वो आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। प्रॉब्लम ये है कि उसे लेने का तरीका आना चाहिए। अगर आप लेने का तरीका सही नहीं है तो ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बहुत डिफरेंस उसमें आएगा। ब्लड का तरीका ये है कि सबसे पहले कि आप कारण को, क्योंकि ये रिसर्च आपकी नहीं है, तो मैं 3-4 डिकेड की रिसर्च के बाद हुआ है कि आप ब्लड प्रेशर उस वक्त लें जब आपको टेंशन नहीं हो कि आपने ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करनी है या नहीं करनी है। Once you have established your hypertensive, now you have to do the treatment। अब आप उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं ब्लड प्रेशर की, कि पहले हुआ होता था कि अब मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर की दवा दी जाती थी। अब रिसर्च ये आई है कि आप ब्लड प्रेशर की दवा है वो रात में लें, ताकि सुबह को जो सर्ज होता है अर्ली इन द मॉर्निंग का, उस ब्लड प्रेशर में सबसे कम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर और MI होते हैं, उसको रोकने के लिए रात में दी जाती है। और इसी वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो शाम में दी जाती है। दूसरी जो थी, जब आप देते हैं तो हर एक का ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट रेट भी ड्रॉप होता है, तो उसमें इतना बड़ा असर नहीं होता कि आप एमोलोडिपिन और बासाटन दे दो
तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो आप सो रहे हैं। दिन में अगर एक्टिविटी आपकी है तो यकीन तो भैया बीटा ब्लॉकर बिल्कुल दीजिए उसके देने से। और इसमें कोई शक नहीं है कि 580 के साथ अगर आप स्मॉल डोज ऑफ बीटा ब्लॉकर देते हैं, डेमिनोल दे देते हैं, तो बेस्ट पॉसिबल ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। आम पब्लिक के लिए ब्लड प्रेशर जो हार्ट रेट की बात की नौजवान साहब ने, वो 60 to 100 है, लेकिन एज ए कार्डियोलॉजिस्ट इट शुड बी 53 to 93। हम और ज़्यादा एग्रेसिव है इस मामले के अंदर कि जो हार्ट रेट है वो 53 to 93 होगा। इसे कहा जाता है कि आप हार्ट रेट को अगर कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो उसके लिए 50 से 60 ब्लड प्रेशर आपका परफेक्ट होना चाहिए। और जहाँ तक ये है कि मैं तो ये देख रहा हूँ उस वक्त से मैं पीसीडी की मीटिंग में आ रहा हूँ जब 4 या 5 लोग होते थे। अब माशाल्लाह से इतना होता जा रहा है कि ये नहीं लगता कि ये मॉर्निंग की है ये शाम की है। के साथ मैं ख़त्म करता हूँ कि बाकी चीज़ें लोगों को स्टडी भी करनी है। तो थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। I am feeling that some of the audience want to ask some questions, but frankly we don't have right now any time left for the question and answer. You are free to just ask or like talk to the presenters while we were having the study. So with this, I would like to invite Dr. Farid, Dr. Fariduddin for a few announcements. Dr. Farid, please come on the stage. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू सारे लोगों का और के इस वक्त आए। और मैं अब ज़्यादा हर्डल नहीं करूँगा इन बिटवीन सहरी एंड वो। तो रिसेंटली हमारे जो पीसीडीए के जो इलेक्शन हुए और उसकी जो है वो हमने सारा वो रमज़ान से पहले ही जो है ना सारी इनविटेशन दी और एप्लीकेशंस आई सारी। तो उसमें हमारे जो इलेक्टेड जो लोग हैं उनकी हमने कहा कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। सर भी मौजूद हैं हमारे सीनियर। तो मैं चाहूँगा कि ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है हमारे जो न्यूली इलेक्टेड जो लोग हैं उनके वो करेंगे। तो मैं इनवाइट करूँगा हमारे सबसे पहले तो प्रोफेसर जमान शेख साहब को, सर को, कि इनवाइट करें फॉर ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ न्यूली कैबिनेट। न्यूली कैबिनेट में वैसे तो मैं इसके साथ साथ इनवाइट करूँगा हमारे जो पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, अब वो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर रियासत को वो आएँ और वो भी फिर हमारे मिल के ओथ टेकिंग सेरेमनी में लें। और बाकी लोगों की अनाउंसमेंट आप ज़रा कर दीजिएगा जो जो हमारे इलेक्ट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग आधी रात को आए पीसीटी के लिए और सल के ताउन से प्रोग्राम हुआ, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू। जो रिसेंटली हमारे इलेक्शन हुए और अब पीसीडीए की जो नई कैबिनेट बनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने फार्मा के लोग हैं ना मुझे कहते थे सर आप प्रेसिडेंट, मैं कहता था नहीं, अब मैं कह रहा हूँ हाँ यार अब मैं हूँ। तो ये कहानी अब खत्म हो गई है। तो आप लोग अभी थैंक यू। तो हम लोग अब शुरू करेंगे अपनी कुछ 10 मिनट की हमारी एक्टिविटी है। हमें सिर्फ एक वोट टेकिंग सेरेमनी करनी है। डॉक्टर शाहिद कहाँ है? हाँ वो लेकर आएंगे ना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं वो जो लोग इलेक्ट हुए हैं उन लोगों की अनाउंसमेंट करूंगा और उनको अपने साथ में आपको स्टेज पे बुलाऊंगा। उसमें जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अभी नए इलेक्शन के बाद जो इलेक्ट हुई हैं वो है डॉक्टर आसमा खान, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है अब नए। उसके बाद हमारे जो हैं वो हैं वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर इकबाल बटालिया साहब, इलेक्शन जीत के आए, जीत कर आए। नहीं। अच्छा, देन हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो सब लोग पीसीडी में काफी हरदिल अजीज हैं, डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब सर। अच्छा आगे आगे हो जाए ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनका ताल्लुक सिंध से है, तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो सारे रात में वीडियो के थ्रू वो पहुंच रहेगा। पवन कुमार साहब हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। एंड लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बड़ा आप लोग खुद अंदाजा लगाएंगे कि वो पोस्ट क्या है जिसके लिए बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इलेक्शन में बहुत अच्छा रहा, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो हमारे सबसे बड़ा रोल ना फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, और जो नए फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो हैं डॉक्टर काजी मुजाहिद साहब। तो सर प्लीज, और एक अरसे तक फाइनेंस की जिम्मेदारी बटालिया साहब ने संभाली थी, तो अभी थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ, और एक ओथ है जो इन लोगों के साथ लेना है, ये काफी बारीक लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आएगा।
रियासत एक मिनट में थोड़ा बात करूंगा. रियासत, thank you very much for asking me to contribute this ceremony, and congratulations for you to take over as president now, and your spouse better half will be next president inshallah. So congratulations, and congratulations to Iqbal Batalia, Shahid Akhtar, Dr. Pawan Kumar of Jacobabad, and Qazi Mujahid साहब. अब शहीद कब होंगे भाई? शहीद अभी तक गाजी है ना. गाजी है सर, ये तो लिखा पढ़ाते हैं. मुजाहिद. अच्छा जी, शायद तो पढ़ना पड़ेगा. अच्छा, ऐसा पढ़ना. अच्छा, ये on behalf of all members, I'm reading out this quote on ताकि हम सबको अलग अलग ना पढ़ना पड़े. तो मैं रीड आउट कर रहा हूँ. You don't need to repeat it. This oath says, I, and every one of us do solemnly swear that I will faithfully execute the responsibilities entrusted to me as a member of the Central Cabinet of the Primary Care Diabetes Association Pakistan. I pledge to uphold the mission and objectives of the association, striving to improve diabetes care and awareness across Pakistan with integrity, dedication, and professionalism. I will work tirelessly to promote evidence-based practices, advocate for the rights of patients, and support healthcare professionals in their efforts to prevent and manage diabetes effectively. I vow to perform my duties with honesty, transparency, and accountability, ensuring that all decisions and actions serve the best interests of the association, its members, and community at large. May Almighty Allah guide me in fulfilling my responsibilities with wisdom, compassion, and commitment to excellence. Ameen. Thank you. सर ये आपके साथ. वन बाय वन कर देंगे. आइए करना मेरा रियासत. डॉक्टर आसमा. जब तक साइन हो रहे हैं, मैं एक सर का वाकया बताऊं. सर मेरे सुपरवाइजर थे, मेरे बॉस थे. तो काफ़ी जगह पर इन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया, और साथ साथ जो है 2-3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी इन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन रखी थी. तो एक दफ़ा सर ने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस है और उसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है. तो मैंने कहा कि सर मैं किसी दूसरे स्पीकर से प्रेजेंटेशन करवा देता हूँ. तो कहेंगे नहीं तुम क्यों नहीं कर सकते. मैंने कहा सर मैं नहीं करता. तो कहेंगे नहीं तुम इतनी मेहनत कराई है और तुम अब क्यों मना कर रहे हो. तो मैंने सर से कहा कि सर उस वक्त मैं एक्टर था और अब मैं डायरेक्टर हूँ. तो सर अब इसका जवाब ऑडियंस. डायरेक्टर था तो देखें सारे लोग अब साथ में. तो जब डायरेक्टर होता तो फिर एक्टर वाला काम नहीं होता. हो गए सारे. ये पवन का वो वहाँ चला जाएगा. हाँ थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस ऑनर. थैंक यू. सर आप टीचर हैं, मेंटोर हैं, एनी टाइम सर आप हमारे साथ रहे हैं. फर्दर ये कि मैं वंस अगेन डॉक्टर अली, माय डियर फ्रेंड डॉक्टर अली को जब मैं फ़ोन करता हूँ तो यकीन करें कि इनका वर्ड ये होता है कि रियासत भाई मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था. रिमेंबर डॉक्टर जीशान भाई मेरे, मिस्टेक हो गई है, अभी ये प्रोफेसर बने और मैं इनके घर तक जा नहीं सका हूँ. और उसके बाद भैया, ये असल में आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन पीसीडी के भैया हैं ऋषि भाई. सर तो हमारे मित्र हैं लेकिन ये भैया हैं. और स्पीकर हमारे शाहिद भाई, और आप सारे लोग आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि इसी तरह आज ही रात को अगर पीसीडी बुलाती है तो ये लब्बैक कहा है आपने. और जो भी सल की टीम है, ये सारे लोग, इन लोगों ने बहुत काम किया, स्पेशली इसमें महमूद है, रेहान है. लेकिन सबसे बढ़कर ये कि इनके जो बिग बॉस है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब आशिफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप भी स्टेज पे हैं, फ्यू वर्ड्स आप भी जो है वो कहें सल की तरफ से, क्योंकि उसके बाद फिर हमें सहरी भी करनी है. थैंक यू डॉक्टर साहब. सहरी का वक्त हो गया, आपने सहरी याद दिला दी है. आई जस्ट हैव 2 words टू से.
Thank you, Dr. Ali Asghar, for a very delightful presentation. Thank you, Professor Dr. Zaman Sheikh. Thank you, everyone, for joining us here in this wee hour of the morning. And thank you, congratulations for all the office bearers of PCDA. हम सर की तरफ से हमेशा से आज आपके मेज़बान भी हैं और आपके पार्टनर भी हैं इस जर्नी में, PCDA के इस जर्नी में जो कि एकेडमिक जर्नी है और इसके ज़रिए जो पेशेंट्स को बेनिफिट पहुंचाने वाला जर्नी है, इसमें हम कल भी पार्टनर थे, आज भी पार्टनर हैं। इंशाल्लाह वी आर कमिटेड टू बी विद यू इन दिस जर्नी। एक बात बस, जिस कंपनी और जिस पार्टनर की हम बात कर रहे हैं उसकी दो खास बातें। एक ये कि जो दवाई आप यहाँ यूज़ करते हैं, लिखते हैं, मरीज़ों को देते हैं, यही दवाई दुनिया के 16 मुल्कों में जाती है, इसी नाम से मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। दूसरा, ये जो पार्टनर आपके साथ है ये सिर्फ ओरल सॉलिड लिक्विड इंजेक्टेबल नहीं बनाता, ये पाकिस्तान में पहला पार्टनर है जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी बनाता है, जो कि बहुत हाई टेक बायोटेक मेडिसिन है अल्हम्दुलिल्लाह। इडेलीमुमैब भी बनाता है, रिटुक्सिमैब भी बनाता है। तो आप और हम मिलकर इंशाल्लाह ताला इस जर्नी को और एक्सटेंड करेंगे और इंशाल्लाह टुगेदर वी विल कंटिन्यू टू पास ऑन द बेनिफिट्स टू द पेशेंट। थैंक यू। थैंक यू सलिका के एक हमारी जो भी डॉक्टर शाहिद भी तस्करा कर रहे थे, जो ट्रेन राइड थी हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा वो प्रोग्राम था। अच्छा, साथ में मैं थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट मुझे ये थी कि ये हमारी वो कैबिनेट है जो इलेक्ट हुई है, लेकिन जब इलेक्शन के बाद सिलेक्शन भी होती है, जो सर 47 वाले लोग हैं। अब उसके अंदर डॉक्टर शाहिद, हमारा डॉक्टर शकील अहमद साहब, सर प्लीज़ ज़रा, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन की डॉक्टर शकील जो है हमारे नए मीडिया सेक्रेटरी हैं, और इनके साथ अब दूसरी इनकी टीम मौजूद है जो आगे हैं। इसके अलावा सोशल सेक्रेटरी मौज़म शाह यहाँ बैठे हुए हमारे साथ। इसके अलावा जो रिसर्च सेक्रेटरीज हैं उनके अंदर इस वक्त यहाँ इजहान मौजूद हैं, डॉक्टर फरियाद नहीं है, डॉक्टर इजहान जो है वो रिसर्च के अंदर हैं। और हमारी एक और कमेटी है जो मेंबरशिप है, अभी उस मेंबरशिप कमेटी के अशरफ रहीम साहब वो भी यहाँ मौजूद हैं। और एक और हमारी जो पब्लिकेशन कमेटी है शायद अख्तर साहब संभाल लें, लेकिन अब हमने उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व किए हैं वो इत्तेफाक की बात है कि उनका कराची से ताल्लुक नहीं है। कोई लाहौर का है, कोई कोहाट का है, कोई मानशहरा का है, और कोई कोटली आज़ाद कश्मीर का है, और कोई सिंध के अंदरूनी सिंध में मीर खास का है। तो ये डिफरेंट लोग हैं जो अब हमारे रिसर्च के सारे कामों को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेपर तो सारी चीज़ें ऑनगोइंग चल रही हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी जो चीज़ें थी, एक था हमारा स्टेप, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि स्टूडेंट टास्क फोर्स फॉर एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, जो डॉक्टर अली आप तो जानते हैं स्टेप को। तो अब स्टेप की जो नई हेड हैं वो भी अब आ गई हैं। अब स्टेप के जो पुराने हेड थे वो भी चले गए, तो डॉक्टर फरिया यहाँ मौजूद है, ये स्टेप की हमारी नई हेड है। इसके अलावा डाइट एजुकेशन विंग है, उसकी हमारी जो खातून हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स का प्रोग्राम था, वो बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट है। एंड थर्ड हमारा जो वीमेन ग्रुप है, उस वीमेन ग्रुप की जो हेड है वो हैदराबाद की हैं, तो वो इस टाइम मौजूद नहीं है। और फाइनली लास्ट बात है डॉक्टर जाहिद मियाँ, जो आज अनाउंसमेंट हुई है कि प्रोफेसर जाहिद मियाँ हो गए, तो मुझे उनका मैसेज देना था। तो वो आ नहीं सकते थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी फैमिली की, तो वो आ नहीं सके। तो सबसे पहले तो आप लोग आए रात को, तो हमारे जो अब एक्स प्रेसिडेंट थे। अच्छा, हमारी एक सिलसिला ये है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद नेक्स्ट, अब जैसे डॉक्टर फरीद हैं वो ज़ाहिर है PCDA के हैं, डॉक्टर हमारे नजम साहब हैं वो भी PCDA के हैं, डॉक्टर साहिब भी PCDA के हैं, लेकिन रैंक इनका कोई नहीं है। तो जो सदर से अगला हिस्सा होता है वो हमारे यहाँ होती है सुप्रीम काउंसिल। तो उस सुप्रीम काउंसिल के जो हेड है वो डॉक्टर फरीद हैं, उसके बाद डॉक्टर जाहिद और डॉक्टर नजम भी पार्ट ऑफ सुप्रीम काउंसिल है हमारे। तो वो आ नहीं सके, तो आप सब लोगों का शुक्रिया उनकी तरफ से, और जो हमारे नए इलेक्टेड और सिलेक्टेड लोग हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर जाहिद की तरफ से। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर अख्तर बलूच साहब, मैं सॉरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, आप आए, बहुत शुक्रिया आधी रात को। तो शहरी का प्रोग्राम कहाँ है हम लोगों का? सामने है। तो हाँ, तो मैं ख्याल है कि अब हम लोग जो है वो शहरी की तरफ चलते हैं, और सबका बहुत शुक्रिया। मैं पूछ रहा हूँ कि कहीं और तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो? एक मिनट, कौन सा माइक है? ये एक